Hello and welcome on the election highway. We are now reaching Ghazipur. This is the famous ashram of Pauhari Baba. The people of Ghazipur have a lot of astha in the Pauhari Baba. They believe this is where in 1890 Vivekanand also came to seek his guru, to seek his diksha, and that's why whichever politician comes here, very recently JP Nadda, the BJP president, was here. He also came to the Pauhari Baba ashram to seek the blessings of the Almighty here. So that's the location where I'm coming to you live from. Ghazipur political battle is heating up. On the one hand is Afzal Ansari, the brother of Mukhtar Ansari, who recently died in jail. Challenging him is a debutant from the Bharatiya Janata Party who was once considered the right-hand man of Manoj Sinha, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. So how is the battle really shaping up? Stay with us over the next 1 hour to understand the pulse of Ghazipur. Battleground Ghazipur, like I said, is very interesting this time around. Let me set it up for you first. Like I told you, Afzal Ansari, the brother of Mukhtar Ansari, the sitting member of parliament from Ghazipur. Last time, however, he was elected on a BSP ticket. That was the time when BSP and Samajwadi Party were in an alliance. This time, Afzal Ansari is fighting on a Samajwadi Party ticket. In the India front is, throwing its weight behind Afzal Ansari. Mukhtar Ansari's death, which has happened just 2 months back, is being used by Afzal Ansari to say that this was injustice to his brother. Is the sympathy vote really with him? On the other side is Mr. Rai, who was once considered the right-hand man of Manoj Sinha, the strong man of Ghazipur. If you go around Ghazipur, they refer to Manoj Sinha as the Vikas Purush. But his absence from the battleground, Manoj Sinha, if you recall, lost the battle in 2019 by over 1 lakh vote. So how are things shaping up this time around? Joining me, the spokespersons of the Congress Party, the BSP, the बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी. मैं भाजपा से शुरू करती हूँ. पिछली बार मनोज सिन्हा, जिनको विकास पुरुष कहते हैं गाजीपुर के लोग, 1 लाख प्लस वोट से हार गए. इस बार तो वो खुद भी चुनावी मैदान में नहीं है. किसी ऐसे आदमी को टिकट दिया गया है जिनको जनता पहली बार देख रही है. तो क्यों जनता को बीजेपी को वोट देना चाहिए? क्या आपको लगता है माहौल है इस वक्त चुनाव का? जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस गाजीपुर के पावन पवित्र धरती पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ. शुक्रिया. और उसके साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास की राजनीति में तथा देश में सेवा समर्पित राजनीति के लिए जानी जाती है. मनोज सिन्हा जी चुनाव हारे नहीं, बल्कि 1,46,000 मत ज़्यादा पाए थे. और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं रहा होता तो मनोज सिन्हा जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते थे. बट इलेक्शन कमीशन तो यही कहता है कि वो हार गए. निश्चित तौर पर, लेकिन गाजीपुर की जनता अपने आप को स्वयं हारा हुआ महसूस करती है. मतलब जो है पार्टी हारी है. मैं गाजीपुर की जनता से पूछूंगी. आई हैव लॉट ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम गाजीपुर हु हैव जॉइंड मी हियर. आई विल गो टू देम, बट लेट मी गेट इन अ वर्ड फ्रॉम समाजवादी पार्टी. समाजवादी पार्टी ने इस बार अफजल अंसारी पर अपना भरोसा जताया है. मुख्तार अंसारी की मौत अभी अभी हुई है. लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को याद दिला रहे हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अंसारी परिवार हो. माफिया से छुटकारा दिलाने की बात हो रही है उत्तर प्रदेश को. ऐसे माहौल में अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए एसेट है या लायबिलिटी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल था. धन्यवाद पहले तो न्यूज़ 18 का. और इस गंगा किनारे पावन धरती पर बाबा के कुटिया पौहारी बाबा के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं. आप जब ये बोली हैं कि अब मुख्तार अंसारी का आप नाम नहीं है, तो बनारस में वो संत घूम रहे हैं क्या जो वोट मांग रहे हैं? बनारस गई है कि नहीं गई मैम? जाइए बनारस देखिए, एक संत घूम रहे हैं, अवतारी पुरुष आए हैं, पता नहीं कहाँ लापता थे, अचानक प्रकट हो गए हैं. वो मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं. और ये लोग माफिया की बात करते हैं. और रही बात विकास की बात, विकास गाजीपुर के नाम पे शून्य हुआ है. अगर विकास हुआ था तो मनोज सिन्हा जी हारे नहीं होते हैं. दूसरी बात, मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री के अलावा बीएसएनएल विभाग के दूरसंचार के भी मंत्री थे, डाक पोस्ट के भी मंत्री थे. 4 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ बीएसएनएल में. बीएसएनएल बैठ गया, बीएसएनएल बिकने लगा. डाक पोस्ट का ऐसा मंत्री बने कि दोबारा उसको कोई लेने को तैयार नहीं है. और रही बात मनोज सिन्हा जी की, मैडम
पूर्वांचल का ये दुर्भाग्य है, गाजीपुर का दुर्भाग्य है कि ऐसे मनोज सिन्हा जैसे व्यक्ति को मंत्रालय, इतना बड़ा मंत्रालय दिया गया जो मात्र 2 ट्रेन चलवाकर विकास पुरुष अपने आप को कहलवाते हैं। अच्छा, ओके, सो वेरी वेरी शार्प काउंटर अटैक फ्रॉम समाजवादी पार्टी। बीएसपी एक एक्स फैक्टर है। जहां तक मेरी जानकारी है 3.5 लाख वोटर ऐसे हैं जो दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि दलित बार बार मायावती जी को, बहन जी को ही अपना वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार अगर आप दलित वोटर से बात करें तो उनको लग रहा है मायावती जी जो है वो इररेलेवेंट होती जा रही हैं चुनाव में। तो क्या गाजीपुर की जनता बसपा पे अपना समर्थन दिखाए? क्योंकि बहुतों को ऐसा लगता है कि बसपा को वोट देना मतलब वोट वेस्ट करना, या आपका वोट ट्रांसफर हो रहा है इंडिया फ्रंट को, पीछे की अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आमने सामने बहन मायावती जी का दृष्टि स्पष्ट है, उनके लक्ष्य स्पष्ट हैं। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के रास्तों पर चल रही हैं। और जहां तक आप देखेंगे, जब डाटा की आपने बात की कि वोट शिफ्टिंग, तो 2009 से आप डाटा देखेंगे तो ये डाटा ऑन रिकॉर्ड है कि 28.7% 2009 में लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी को मिला था। 2014 में 19.78% बीएसपी को मिला था। 2019 में जो अभी बीता एक्स लोकसभा से, उसमें 19.38%। हमारा अभी 2022 में जो यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, वहां हम 19.13% वोट पाए। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं आर द बिगेस्ट लाइज, मतलब लाइज और झूठ और स्टैटिस्टिक्स का सामना। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि बसपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लगातार घटते जा रहे हैं, लोग छोड़ते जा रहे हैं। दानिश अली आपको छोड़ के चले गए, रितेश पांडे आपको छोड़ के चले गए, कहाँ है आपके पास? 10 हमारे सपा से ज्यादा हमारे बसपा से प्रत्याशी जीते थे, जो सपा बसपा गठबंधन थे। हम 10 MP जीता के गए थे। और बाकायदे जो छोटे जब अनुशासनहीनता की कार्रवाई जब जिन पे होती है, और बसपा का पूरा मोटा मोटा कह रहे हैं कि बसपा और सपा इंडिया गठबंधन है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि सपा के पास भी संविधान की कोई समझ नहीं है। ये संविधान बचाने का दावा करते हैं क्योंकि ये संविधान विरोधी लोग हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया। पूरा लेख हो गया पूरा संवैधानिक संस्थाओं में, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन लेख के पोजीशन में है। जो दूसरा एक्स फैक्टर है इस लोकसभा में वो है राजभार का। ओपी राजभार पिछली बार जो थे वो सपा के गठबंधन के साथ थे। इस बार उन्होंने आप लोगों के इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिया, वो एनडीए में चले गए। मैं जिन गांवों में घूमी, जो राजभार बाहुल्य क्षेत्र है, वहां भाजपा बार बार उन वोटर्स को रिमाइंड कर रही है कि ओपी राजभार अब हमारे साथ हैं। कितना नुकसान होगा इंडिया अलायंस को? सबसे पहले आपके चैनल को बधाई। आपने गठबंधन, एनडीए गठबंधन की बात की, सुबसपा के, उनका धीरे धीरे देखिए उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इतना उछल कूद कर दिए हैं, कभी इधर कभी उधर, कि उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। वो घूम रहे हैं, अपनी जाति स्वजातियों में घूम रहे हैं, वो अपने तरफ खींचना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जाति भी अब उनको स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपने पुत्र को लॉन्च कर दिए हैं। इसी तरह परिवार, अपने विधायक हैं वो अब अपनी राजनीति परिवार की कर रही। बात इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस कह रही है परिवार की राजनीति कर रही है, थोड़ा बीजेपी को खटकेगा जी। इसलिए कहना पड़ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी चूंकि जो कि यहाँ भरों के अपने भर समाज के जो अपने को नेता बनते हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं धीरे धीरे कि वो अपने को सेट करने में उछल कूद कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस देश में मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की है, जिसमें जनता के मुद्दों की बात की है। उसी मुद्दों पर मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें वो मैनिफेस्टो में गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 8,500 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। अग्निवीर स्कीम, जो कि यही गाजीपुर जनपद में, अग्निवीर यही गाजीपुर जनपद का गहमर गांव है, जहाँ 12,000 लोग सेना में हैं, और आप अग्निवीर जैसी योजना लाके युवाओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम कर दिए। किस मुंह से, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे की इस मुद्दों पर कैसे जाएगी जनता के बीच। जब पूछते हैं जनता के बीच ही चलते हैं, कैसे जाएगी जनता के बीच में? लेट मी आस्क द पीपल अराउंड, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी कैसे जाएगी, ये सवाल है। जब इसका जवाब दें तो ये भी बताइएगा, एक स्टेप आगे आ जाए, ये भी बताइएगा कि यहाँ से जो अफजल अंसारी खड़े हो रहे हैं, जो भाजपा आरोप लगा रही है कि वो माफिया है, वो डर की राजनीति करते हैं। देखिए, अगर आरोप है तो कहीं धुआं हो रहा है तो आग तो रही होगी, ये तो बात है। लेकिन रही बात है ना कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम आने से एकदम इसको टोक्यो बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये टोक्यो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की सरकार थी, तो इस जिले के 3 मंत्री हुआ करते थे सपा में। किसी चौराहे पे उनके नाम का बल्ब नहीं दिखेगा, शहर में घूमेंगी तो। 5 साल पहले मनोज सिन्हा यहाँ के भारत सरकार के राज्य मंत्री थे, 2 विभाग में, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ किया होता जिले के लिए तो वो हारते नहीं चुनाव। अच्छा, ठीक है। यहाँ से सुहेलदेव ट्रेन दे दिए, वो दिल्ली चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े नेता हो गए। आप क्या कह रहे हैं? मैम, आप एक कदम आगे आइए।
हाँ बताइए क्या कह रहे हो? अभी इन्होंने सारी बातें कही और सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, बसपा के प्रवक्ता सबने अपनी बात रखी। बसपा के पहले सांसद हुआ करते थे जिस समय सपा में चले गए हैं अफजल अंसारी 5 साल का इनका कार्यकाल था, उसमें संसद भवन में सिर्फ 13 दिन गए। सपा के प्रवक्ता से हम पूछना चाहेंगे बाकी दिन इनके सांसद महोदय कहाँ थे? ये सवाल तो मैंने सुना कि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है वो भी पूछ रहे हैं कि अफजल अंसारी से 13 दिन लोकसभा में रहे, ही डिडंट इवन अटेंड लोकसभा प्रॉपर्ली, ही वाज नॉट इवन विजिबल इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो व्हाट एग्जैक्टली वाज अफजल अंसारी अप टू? जो सवाल मैं इन लोगों से पूछ रही थी आपसे भी दोबारा पूछती हूँ। अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी परिवार पे बार बार भाजपा ये आरोप लगा रही है कि माफिया राज, जंगल राज उन्होंने फैला दिया था गाजीपुर में, और अब वक्त आ गया है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कि गाजीपुर को माफिया मुक्त किया जाए। क्या डर का माहौल है गाजीपुर में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और हम लोगों के बीच में ये बात आप रख रहे हैं। मुख्तार अंसारी न कभी माफिया थे और न रहेंगे, वो हमेशा यहाँ दिलों में जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर अफजल अंसारी माफिया होते तो उनको यहाँ की जनता जिता करके पार्लियामेंट नहीं भेजती। पहली बार 4 बार वो 4 बार यहाँ से जीत करके गए हैं। विकास की बात और अटेंडेंस की बात आपने कही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक तरीके से गाजीपुर के अफजल अंसारी जी को जिस तरीके से दबाव बनाया गया और प्रताड़ित किया गया, आखिरकार उनके भाई को मौत दी गई, यही कारण था उनको मानसिक तौर से प्रताड़ित करके न पहुंचने का कारण यही है, और यही कारण है कि वो हमारे यहाँ विकास नहीं कर पाए। मैं लेट मी टेक दैट टू द बीजेपी स्पोक्सपर्सन। आप सुन रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर जो लोगों का सेंटिमेंट है वो नहीं है जो भाजपा बता रही है, वो उनको माफिया के तौर पे नहीं देख रहे, कुछ तो उनको मसीहा भी कह रहे हैं। तो क्या जो योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी कि माफिया राज को खत्म करना एक अचीवमेंट बनेगा, क्या गाजीपुर में स्पेसिफिकली उसको वो वर्क नहीं कर रहा है? 2014 से पहले यही गाजीपुर था। अगर 2017 से पहले देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिन पार्टी की सरकार थी, उस पार्टी की सरकार में न तो यहाँ का किसान सुरक्षित था, न नौजवान सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था। तो निश्चित तौर पर जो गाजीपुर के लोग यह बता सकते हैं कि 2014 के बाद 2017 के बाद गाजीपुर में कितनी व्यापारियों की हत्या हुई और 2017 से पहले कितनी हत्या हुई। सबसे बड़ी बात मतलब एक मिनट रुकिए, आप में से कोई है जो इस पॉइंट पे अग्री करता है? आप अग्री करते हैं? अच्छा बताइए, कह रहे हैं लगातार व्यापारियों की हत्या हुई गाजीपुर के लोगों की हत्या। मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि वो किस मुद्दे पे यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने, जब मुख्तार अंसारी की डेथ होती है तो ये लोग कहते हैं कि एक माफिया का अंत हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि लाखों लाख की तादाद में पहुंच करके वहां पे गरीब जनता ने ये बता दिया कि वो माफिया नहीं थे, वो मसीहा थे। एक मिनट रुकिए, आप काउंटर कर रहे हैं इसको? जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कर रहा हूँ मुहम्मदाबाद से लेकर के, एक कदम आगे आइए। मुहम्मदाबाद से लेकर के, जौहराबाद क्षेत्र से लेकर के, शेरपुर से लेकर के गाजीपुर के बीच में तमाम 14 हत्याएं हुई थी गाजीपुर में, और गाजीपुर में 14 हत्या होने के बाद भी उन्हें खुला, यही जो है, यही मऊ में जो है, यही जो है तांडव मचा हुआ था। खुलेआम जिप्सी पर बैठ करके और गोलियां चला रहे थे। एक मिनट रुक जाइए, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को मैं इस डिबेट में लेती हूँ। ये जो कह रहे हैं कि खुलेआम यहाँ पे हत्याएं हुई हैं, रंगदारी हुई है, उसके बावजूद आपने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो ये सेंटिमेंट कहीं कहीं तो है गाजीपुर में, इसको आप लोग कैसे काउंटर करें? मैडम, जब आप जनता के बीच घूमेगी तो आपको एहसास हो जाएगा कि वो माफिया थे कि मसीहा थे। इनको जुमला बोलना है, 15 लाख बोलना है, 2 करोड़ रोजगार बोलना है, 400 पार बोलना है, ये मुंह से बोलना है, कुछ भी मुंह से बोल सकते हैं, अकवास बकवास उलझुल बातें। पहली चीज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि यूपी में वर्ष 2020 में 49,385 महिलाओं के साथ अपराध दर्ज हुआ। 21 में यह बढ़कर 56,000 हो गया, वर्ष 2022 में बढ़कर 56,743 हो गया। एनसीआरबी ने बताया, एनसीआरबी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 अव्वल है। पहली बात ये, रेप के 3690 मामले दर्ज किए गए एक साल में। दहेज हत्या के मामले में योगी सरकार में इजाफा होते हुए 2138 मामला दर्ज किए गए। पॉइंट क्या है आपका कि अफजल अंसारी अकेले क्रिमिनल नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं? अफजल अंसारी अगर क्रिमिनल होते हैं, एक मिनट, अफजल अंसारी अगर क्रिमिनल होते, मात्र ये गाजीपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप खड़ी हैं, मात्र 9% मुस्लिम है और वो लगातार 5 बार विधायक, 2 बार सांसद होकर आए। और दूसरी बात, माफियाओं की बात करती हैं आप मैडम, ये लोग माफियाओं की बात करेंगे। जाइए देखिए ना बनारस में कौन महंत वोट मांग रहा है,
कौन सा महंत आया है वोट मांग रहा है कि हम वोट मांगने आए हैं? 17 साल पता नहीं था कि कहाँ थे वो। दो नाम से एक व्यक्ति के दो नाम। आप बताइए, इस पर सवाल करिए ना, वो माफिया है। चलिए, माफिया वाले मुद्दों पे तो आई थिंक यहाँ पे लोग पीपल आर वांटिंग, ऑल ऑफ देम वांट टू स्पीक ऑन द इशू ऑफ वेदर अफजल अंसारी इज माफिया और इज ही मसीहा. द वोट सीम्स टू बी स्प्लिट हियर एंड द वोट इज स्प्लिट इन मेन गाजीपुर ऑल्सो. वी विल शो यू ग्राउंड रिपोर्ट शॉर्टली, बट आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट द अदर बिग इशू फॉर उत्तर प्रदेश. जो उत्तर प्रदेश में दूसरा बड़ा मामला है, गाजीपुर से हटकर अगर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की बात करें, वो है राम मंदिर का. आपको लगता है गाजीपुर की जनता राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर कन्विंस्ड है? क्या कहेंगे आप? मैडम, गाजीपुर में आने के लिए आपको धन्यवाद. बाबा पवारी बाबा के आश्रम पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है. पूरे देश की जनता भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक, हमारे आदर्श के प्रतीक प्रभु श्री राम है, और प्रभु श्री राम का जो नहीं वो किसी काम का नहीं है, ये जनता महसूस करती है. आपके पीछे एक भाई साहब खड़े, आगे आइए जी, क्या कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से एक सवाल करना चाहता हूं कि राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के सवाल पे ये लोग अपना जवाब तो दे देते हैं, लेकिन इस समय यहाँ की जनता, अर्थव्यवस्था जो यहाँ के हमारे पूरे देश की चौपट हो पड़ी है, और जो इसके बारे में न तो इतनी महंगाई है कि इतनी चरम सीमा पे है कि आम परिवारों का जीना दुर्लभ हो चुका है. नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में 2014 से 2019 का जो कार्यकाल रहा, उसमें 24% महंगाई दर बढ़ा, और दूसरे कार्यकाल में 32% महंगाई दर बढ़ा, जिससे पूरी तरह से हमारी आम जो मिडिल क्लास फैमिली की, जो अभी भी जितने भी मिडिल क्लास परिवार हैं, उनकी स्थिति परिवार की. आपको लगता है अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज ज्यादा बड़ा मुद्दा? हाँ, सरकार इसमें क्या करना चाहेगी, मैं इनसे जानना चाहता हूं. ठीक है, तीसरा मुद्दा, द थर्ड इशू, आई विल कम टू यू. The third issue, we've spoken about Gazipur specific mafia versus messiah. We have spoken about the issue of Ram Mandir. The third issue is of the constitution, and I have to get the BSP spokesperson in it. जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको डिनाई किया, प्राइम मिनिस्टर ने इसको डिनाई किया, बट इंडिया अलायंस फिर भी इस बात को आगे बढ़ा रही है. तो आपका जो कोर वोट बैंक है, जो आपको, आपकी पार्टी पे विश्वास करते हैं, उनके बीच में क्या सोच है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर? और ये जो कहा जा रहा है कि अगर 400 पार का आया बीजेपी का, एनडीए का नंबर, तो संविधान को बदल देंगे, जो बार बार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा, मोहन भागवत सबने डिनाई किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की या रिजर्वेशन हटाने की हमारी कोई मंशा नहीं है. फर्स्टली आई से टू यूपी इंडी गठबंधन हज इंडी गठबंधन इंडिया हेकल मत करिए, हेकल मत मैडम, इंडिया एज ऑर्गेनाइजेशन इंडी गठबंधन has no knowledge about constitution, about preamble, about any matters, and NDA organization lack out in the constitutional institutions, and in which the two parts, Nakal Mafia and Asal Mafia, Bahan Mayawati जी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड डॉक्टर उमेश कुमार सिंह एज सुप्रीम कोर्ट. पॉइंट क्या है, आप क्या पॉइंट बता रहे हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे, क्या आपके वोट बैंक दलितों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किसी तरीके का कोई डाउट है? नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को लेख हुआ है, लेकिन प्रियम्बल में किसी प्रकार के बदलाव जो हुए हैं उसको लड़ने के लेकर के बहन मायावती जी सक्षम है, और उनके जो संविधान की जो जानकारी रखता है वो सक्षम है. और जो हमारे भाई साहब इंडी गठबंधन या इंडिया, ये कुछ भी कह लें, क्योंकि अंग्रेजी की जानकारी अगर पूरा कर लेंगे तो ये पता चले कि इंडी और एनडी में क्या अंतर है. ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद इनको संविधान का, इन लोगों का ABCD मालूम नहीं है. इन्होंने जब भी ये सरकारों में रहे संवैधानिक बहुत सारे हस्तक्षेप किए. इंदिरा गांधी के समय में तो डाउट है कि नहीं है? मेरा सिंपल सा सवाल. मेरा इन दोनों लोगों को संविधान से कोई लेना देना नहीं है. संविधान की असली रक्षक बहन मायावती जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलती हैं, और उनके संविधान के प्रस्तावना, प्रियम्बल पे और संवैधानिक संस्थाओं पे पूरा विश्वास है. उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, भाई साहब ने कहा कि संविधान की रक्षा कौन करेगा. संविधान के सबसे बड़े हत्यारे तो कांग्रेस पार्टी रही है. इन्होंने भीमराव अंबेडकर के जो संविधान में, जिसमें लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देना जाना चाहिए, ये देने की बात भी करते हैं, और कर्नाटक में दिया भी है. SC ST OBC का आरक्षण काट के 15% इन्होंने मुसलमानों को दिया, सिर्फ तुष्टिकरण राजनीति में. 370 लगाकर SC ST का अधिकार कश्मीर में इन्होंने छुड़ा, 370 लगाकर. ये कांग्रेस संविधान विरोधी रही है, और इसी प्रकार लालू यादव भी कहते हैं कि हम 15% आरक्षण देंगे. ममता बनर्जी जी ने अभी जहाँ पे हाईकोर्ट का फैसला देखा होगा,
15% आरक्षण ओबीसी में मुस्लिमों को दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जी, उनको मौका देती हूँ। कांग्रेस पर ये आरोप है कि आप लगातार छेड़छाड़ करते आए हैं, आप हैं जो एक्चुअल रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। ये आरोप आप पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी लगाया। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कहाँ आरक्षण। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनको ज्ञान मिला। आप जो पूछिए प्रधानमंत्री तो नहीं बता पाए कहाँ हमारे मैनिफेस्टो में है कि मुस्लिमों का आरक्षण। ये कह रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया है। टीएमसी आपके गठबंधन का ही हिस्सा है, चाहे वो कहे हम आउटसाइड सपोर्ट देंगे। टीएमसी ने पहले कहा हम इंडिया अलायंस में है, फिर कहा आउटसाइड सपोर्ट देंगे। ये रेफर कर रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के उस ऑर्डर का जिसमें टीएमसी को सेटबैक हुआ है ओबीसी रिजर्वेशन के मामले पे। देखिए मैम, अब देश का चौथा स्तंभ है। आप बताइए, टीएमसी हमारे गठबंधन में है, इंडिया तो हमें भी नहीं पता, मेरे ख्याल से खड़गे जी को भी नहीं पता कि वो है कि नहीं है। देखिए ये संविधान की जो बात संविधान पे कह रहे थे, कहीं हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं है कि हम धार्मिक आधार पे मत देंगे। और दूसरी चीज यहाँ मुद्दों की जब बात हुई, उत्तर प्रदेश में मुद्दों की बात हुई, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा है। अभी आप पुलिस भर्ती की परीक्षा में देखे हैं, पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ, आरओ परीक्षा में पेपर लीक हुआ, युवा यहाँ धरना पर बैठे तब जाके पेपर निरस्त किया गया। तो आप देख रहे हैं कि लीकेज की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार। लीकेज की सरकार है, डबल इंजन की। मैं वापस आऊंगी आप सबके पास। यहाँ पे वेरी enthusiastic crowd participation from here. The issues that they have dealt with, like I told you, Ghazipur specific issue of whether Afzal Ansari is a mafia or a messiah. The second issue is of Ram Mandir, which has been built in Ayodhya. Is that an issue for the voters? So there are mixed voices here as well. But more specific issues of the youngsters seems to be paper leak, unemployment, and the issue of price rise. I'm slipping into a very quick break, but stay right here with me, because when I come back, I'll take you to meet the two main candidates who are fighting against each other here in Ghazipur. Stay with us. ठीक है। Welcome back. We are coming live on the election highway special from Ghazipur. I'll tell you more about the political pulse here, but there's some breaking news coming in as far as the Pune case is concerned. Let's go to that right away. There is a twist in the tail as far as the Pune case is concerned. We are now told that joint judicial custody of all accused has been granted by the court there, and the statement of a driver is being recorded. What we hear from sources is that the driver has prima facie told the police that he was asked to take the entire blame on himself. He was asked by the owners allegedly to confess that it was he who was driving the car on the fateful night, so that the minor who has been held by the police is given some kind of a relief. That's the news Yesha is getting from us. Yesha, if you're there on the phone with us, give us more details as to what police is telling you at the moment. So yes, right now the details that have emerged as far as the investigation in this case is concerned is that the driver in this case, driver in this case is currently with the Pune police, is recording his statement in this case. In this statement, he admitted that that he was given a call by the accused's father, asking him to admit that he was driving the vehicle, and if he would admit, then the father of the accused would handsomely reward him. Now, this is the details that have come in as far as the investigation in this case is concerned. In fact, this call, the driver has received this call around 2:30 a.m. And as of now, the cops are still questioning him. There's also possibility that the driver would be turned into an approver in this case because he is in the know-how of everything that happened. Now, let us take our viewers back to what happened throughout the day. In fact, this morning there was this theory that had come out, which was in fact debunked by the Pune police commissioner himself, wherein the accused had mentioned that was not the accused but the driver who was driving the vehicle. In fact, when we spoken to various eyewitnesses in this case, they had said that when at Yerwada police station there was an attempt that was made to ensure that the driver is made as an accused in this case, but because of the pressure by the eyewitnesses, where that did not really happen. And right now, when you see the Pune police commissioner himself admitted that the accused was driving the vehicle and not the driver. Yes. So he could become the approver in the case, and that would really give a huge boost to the prosecution? Absolutely. In fact,
while there are eyewitnesses, but in this case, the driver himself was someone who was present in the car. It was he who has in a statement time and again told the cops that he had informed the accused in this case that he should be driving the car. He informed the accused's father that he should not be, that the accused should not be allowed to drive, that he was under the influence of alcohol. But none of them actually paid heed to the driver, which is where this accident took place. So here, if the driver becomes an approver, his statement would be of crucial importance. In fact, his statement could also be recorded before the magistrate, so as to ensure that it holds in the book of law, and that could be a huge boost towards the charge sheet that could be filed in the next 30 days. Yes. All right. Right. Yasha, thank you so much. That story has caught the imagination of the country. Everybody is crying for justice for the two victims. We'll come back to that story. But let's shift our focus back to Ghazipur. We're coming to you live from Ghazipur. Why has this constituency become important? Because this is the constituency from which Afzal Ansari is the candidate for the India Alliance. Afzal Ansari's brother, Mukhtar Ansari, accused of a number of cases, accused of being a mafia. He recently died in a jail, and then allegations were made by his family that he was poisoned, he was slow poisoned, and amidst all of these allegations and counter allegations, Ghazipur is going to vote. I caught up with Afzal Ansari and asked him whether the allegation of mafia sticks to him. But before that, I also want to show you these visuals on your screen. When we talk about Ghazipur, we are coming to you live from an ashram which has a lot of belief for the locals, but there's also the tomb of Lord Cornwallis. So this city has a historical connection as well. This city of Ghazipur is known for its contribution in the freedom fighters movement as well, and the British officer Lord Cornwallis' tomb is here, a tourist attraction. Now coming back to Afzal Ansari, when you speak to him and accuse him and his family of being a mafia, he turns around and reminds viewers that he actually comes from the family of freedom fighters. Listen in to the candidate from Samajwadi Party, Afzal Ansari. Ghazipur is synonymous with the Ansari परिवार. Afzal Ansari is now fighting on a समाजवादी पार्टी टिकट. सर, आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये चुनाव आपको कैसा लग रहा है? लोगों के बीच क्या मैसेज मिल रहा है आपको? लोकतंत्र का ये महापर्व है, जनता में उत्सुकता है. हम अपील कर रहे हैं, अधिकांश लोग जाएं, कोई भी न बचे, सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें. जो बाहर हैं वो भी लोग आएं, 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलजुल कर चले जाएं और वोट भी डाल लें. बट ये चुनाव सर उस वक्त हो रहा है जब मुख्तार अंसारी हमारे बीच में नहीं है. उनका जिक्र आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तब भी कर रहे हैं, उनका जिक्र योगी आदित्यनाथ मोदी भी कर रहे हैं. मुख्तार अंसारी के अमर होने की यही निशानी है कि आज वो नहीं भी हैं तो उसका जिक्र आप भी करेंगी, देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कर रहा है. लेकिन जिक्र करने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग है. आप किसी तरह से करिए, बहुत बड़ा अपराधी कह के करिए, जनता का तो हीरो है. आप कह रहे हैं जनता का हीरो है, बट अगर भाजपा में साबित होगा. अभी इलेक्शन 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो जब सफाया होगा तो समझ जाइएगा क्या था. तो आपको लगता है 2019 में जो मनोज सिन्हा को हार आपने भेंट की, उससे इस बार आप अपना टैली ऊपर ले जाएंगे? जनता का मूड इसी तरह का है, बाकी 4 तारीख को पता चला. अगर भाजपा से बात करें या प्रशासन से बात करें, तो चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अंसारी परिवार हो, चाहे अतीक अहमद हो, वो कहते हैं ये सारा माफिया था जिसको अब जो है ब्रॉट टू जस्टिस किया जा रहा है. बट आप उनको मसीहा कहते हैं. मिट्टी में मिला दिया गया तो मिट्टी में मिलाने वालों को पुरस्कार तो मिलना चाहिए. जो लोग कहते हैं ये माफिया थे, पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया गया, तो उनको पुरस्कार जनता देगी. 4 तारीख को पता चलेगा कितना पुरस्कार दिया. सजा दे देगी तो समझिएगा कि जो कुछ कहा जाता था वो झूठ था. सच ये है कि वो अमर है. तो ये सिंपैथी फैक्टर भी क्या गाजीपुर में काम कर रहा है? आपको क्या लगता है? किसी माफिया के साथ सिंपैथी हो सकती है समाज की? अपने हीरो के साथ सिंपैथी होती है, माफिया के साथ नहीं होती. एक सांप्रदायिक राजनीति का भी आरोप लगता है, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो. पर क्या आपके साथ सिर्फ मुसलमान वोटर जोड़ रहे हैं, हिंदू वोटर भी जोड़ रहे हैं? मेरे साथ सिर्फ मुसलमान का सवाल ही नहीं है. मैं तो 10% आबादी वाले क्षेत्र में राजनीति के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ. मैं आज भी मानता हूँ कि 10% सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू शायद उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं. 90% हिंदू भाई सेकुलर हैं.
हमारे लिए, उस धर्म के लिए मेरे मन में पूरा सम्मान है और उन लोगों के माध्यम से भी मुझे पूरा सम्मान मिलता है। मैं किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी स्वामी के यहाँ हमेशा जाता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, मेरा भी सम्मान किया जाता है, मुझे स्थान दिया जाता है। यही तो चमत्कार है जिस पर सारी बुद्धि उलट जाती है। सर, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ अभी अभी अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है। आपको नहीं लगता जनता के बीच वो फैक्टर है? हम कह रहे हैं कि जनता इस पर नाराज है। आप कहते हैं हम राम को लाए हैं, कहाँ से लाए? मेले वाले से खरीद के लाओ। भगवान है राम, उनके लिए तो सबकी आस्था है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज। अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। दो और सवाल मेरे। जनता का फैसला आप कह रहे हैं, बट एक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी पेंडिंग है। आपके मन में या आपके समर्थकों के मन में क्या कोई डाउट है? क्योंकि उसमें सरकार चाह रही है कि आपका चुनाव ही रद्द कर दिया जाए अगर वो कन्विक्शन अपहोल्ड हुआ तो। सरकार चाहेगी जो चाहे, जनता जो चाहेगी वो करेगी। मैं लड़ने योग्य हूँ, लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ही मुझे लड़ने योग्य बनाया, मेरी सज़ा के आदेश को निलंबित किया। फैसले से जैसा आएगा उसको भी उसका जो रास्ता होगा। मेरे कुंडली में इनकलाब लिखा हुआ है, संघर्ष लिखा हुआ है। जब तक जीवित हूँ करता रहूँगा। पर आप अफजाल अंसारी और आपने अपनी बेटी को भी इस चुनावी मैदान में उतारा है। लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए कि बाई चांस अगर आपका कन्विक्शन अपहोल्ड हुआ और आपका रद्द हो गया नामांकन तो वो आपका विरासत संभालेंगे। आप बताइए, मनोज सिन्हा के बेटे को मान्यता है, अफजाल अंसारी की बेटी को मान्यता नहीं। इस परिवार की बेटी थी जोहरा बेगम, डॉक्टर अंसारी की बेटी थी जोहरा बेगम, जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल गई। उस परिवार को ये अधिकार नहीं, उसके बेटे और बेटियों को जिन्होंने देश की सरहदों पर बलिदान दिया, उनके वंशजों को अधिकार नहीं कि वो देश की राजनीति में और समाज सेवा में काम कर सके। हम अपने निजी मामलों को लेकर नहीं, इस आज़ाद भारत में कुछ सोच ऐसी है लोगों की जो गरीबों को, कमज़ोर लोगों को दबा करके गुलाम की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप हैं बाहुबली माफिया? आप कहते हैं, हम नहीं कहते सर। आप कहते हैं। आखिरी सवाल, मनोज सिन्हा आपके एक्चुअल प्रतिद्वंद्वी है, वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। कहाँ हैं? आज भी यही है, कल भी यहीं थे, कल भी यहीं थे और आज भी यहीं है। जिस दिन जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों ने घुस करके सेना के 5 जवानों को, एयरफोर्स के लोगों पर गोलियां बरसा दी, एक जवान शहीद भी हो गया, एक अधिकारी, 4-5 घायल हुए, उस दिन भी यहीं थे, उसके दूसरे दिन भी यहीं थे। तो ये चुनाव अफजल बनाम मनोज सिन्हा आपको लग रहा है? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अगर सामने होते तो उनका नाम लेते। सिंबल तो और उसके सामने जो चेहरा है वो उनके ही एक तरह से पारसनाथ राय का है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल जी। अफजाल अंसारी there just leaving for his campaign trail, and you see all his supporters are just gearing up to take him further into Ghazipur's rural belt, and we'll have to see how he's really convincing people to vote for him in this election, which is a matter of existence perhaps for the Ansari parivar. साहब छुपते भी नहीं, साहब सामने आते भी नहीं. That is Afzal Ansari's parting shot for Manoj Sinha. He is the man that Bharatiya Janata Party had always seen in Ghazipur. But I'm just going to take parting shots from the crowd here. एक शब्द में बताइए, गाजीपुर की जनता के लिए इस बार मुद्दा क्या होगा? एक शब्द. मुद्दा तो तमाम है गाजीपुर की जनता की, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मुख्तार अंसारी को मसीहा कहते हैं. वो किस प्रकार के मसीहा थे, मैं यही बताना चाहता हूँ. एक शब्द में क्या मुद्दा है? यहाँ सारी मीडिया मान लीजिए खाली अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पे, टेनी पे और कुलदीप सेंगर पे कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाया. और यहाँ रोजगार का मुद्दा है. कांग्रेस की जब सरकार थी तो हर लोको पायलट, हर साल में लोको पायलट की वैकेंसी निकलती थी. 2 साल पे एक शब्द में अफजाल अंसारी ने 5 साल सांसद थे, उन्होंने 263 किलोमीटर पीएम जिसवाई से रोड बनवाने का कार्य किया है. एक शब्द में बताइए मैडम. गाजीपुर लोगों के लिए, नौजवानों के लिए यहाँ पर एक स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके. All right, okay. So the crowd here is getting restless. All of them are wanting to participate in this democratic process. But what is it that they are wanting? I also caught up with Parasnath Rai, the Bharatiya Janata Party candidate, on how he's countering Afzal Ansari in this election. Listen.
भारतीय जनता पार्टी has fielded a new face in Gazipur this time around. Parasnath Rai here with me. राय साहब, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके विपरीत अफजल अंसारी जैसे मतलब लेजिस्लेटर रहे हैं, सांसद रहे हैं, मुख्तार अंसारी उनके बड़े भाई रहे हैं, तो अंसारी परिवार का जो यहाँ पे असर है, आपको कैसे लगता है, आप कैसे काउंटर करेंगे उसको? अंसारी परिवार का असर तो उसी दिन खत्म हो गया जब प्रदेश में आदित्य योगी नाथ जी मुख्यमंत्री हो गए। इस तरह के सारे लोगों का असर प्रदेश में अब खत्म है। अंसारी परिवार तो अंसारी परिवार है ही है। अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम इस प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जब हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, सामान्य कार्यकर्ता को, तो वो निश्चित सोच के दे रही है कि एकदम मजबूती से लड़ेंगे। अब अंसारी परिवार का कोई मतलब नहीं। अफजल अंसारी से हम लोग सुबह मिले, वो तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है साजिश के तहत की गई है और इसका सिंपैथी वोट उनको मिलेगा। तो साजिश के तहत होगी तो जांच होगी, इसकी जांच आएगी सामने। आज सिंपैथी की जहां तक बात वो बार बार कर रहे हैं, मैं भी कई बात कर चुका हूं। जिस दिन मुख्तार अंसारी इस धरती से गए उस दिन इस जिले ने राहत की सांस ली कि कम से कम एक भार तो पृथ्वी पर से गया। वो विपरीत बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी क्या थे ये सब लोग जानते हैं। दूसरा, आप लगातार अपने भाषणों में भी मनोज सिन्हा जी का जिक्र कर रहे हैं। पिछली बार मनोज सिन्हा गाजीपुर से हार गए थे, कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपको क्यों लग रहा है कि जो वो नहीं कर पाए आप कर पाएंगे? इसलिए हार गए थे, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। जो हमारा जिले का जो समीकरण है, जो नेचर है जिले का, सपा बसपा का वोट और अफजाल अंसारी के जाति का वोट, इतनों मिला करके 50% या उससे ऊपर हो जाता है। वह किसी के लिए क्रॉस करना मुश्किल है। आज सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, ओम प्रकाश राजभर जी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। अब वो सारी कठिनाइयां समाप्त हो चुकी हैं। और सबसे आवश्यक बात जो बताना है कि 14 के अपेक्षा 19 में आदरणीय मनोज सिन्हा जी 1,48,000 वोट अधिक पाए थे। अगर उसी दिन दोनों अलग अलग लड़े होते तो उतने ही से चुनाव हार जाते, उतने ही चुनाव हार जाते। ये भी कह रहे हैं अफजल अंसारी कि ये चुनाव असल में एलजी साहब लड़ रहे हैं। अब ये तो उनका ज्ञान की हम क्या बात कहें कि एलजी साहब आदरणीय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। अगर उनके मन में ऐसा है तो ये अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ कि अफजाल अंसारी यह भी कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति तो पाकिस्तान और म्यांमार से भी गई गुजरी है। अभी उनके भाषण में सुन रहा था, वो यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं, मैंने 25 साल, और 2 बार सांसद रहे हैं 10 साल, 35 साल उन्होंने इस जिले का प्रतिनिधित्व किया है। और इस देश की स्थिति को वो पाकिस्तान और म्यांमार के बराबर बता रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो आटा भी के लिए लाइन लग रही है और लाठीचार्ज हो रही है। आप तो पत्रकार हैं, सुनी रही हैं, तब तो मोहम्मदाबाद में भी आटा के लिए लाइन लगा रहे हो। अब तक 10 लाठी पड़ चुकी है उनकी पीठ पर। तो इतना जो हम महान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इतनी बार प्रतिनिधित्व किया है, जिले ने जितना विश्वास किया है उनके ऊपर, अगर भारत के ऊपर यही सोच उनकी है तब तो उनके दिमाग का दिवालियापन है और कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं सभा करने गाजीपुर, 5वीं बार आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। कैसा लग रहा है आपको? क्या उम्मीद है आपको गाजीपुर की जनता से? प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा आपको लगता है? प्रधानमंत्री के आने पर तो बहुत कुछ बदल जाता है। यह गाजीपुर से उनका स्नेह है। पहले गाजीपुर पिछड़ा जिला कहा जाता था। तब जब मनोज सिन्हा जी मंत्रालय में और उनके मंत्री परिषद के सदस्य हुए तो गाजीपुर के विकास की बात, चूँकि बनारस बगल में है, यहाँ भी गाजीपुर का विकास हो, क्योंकि उसको लहुरी काशी कहते हैं गाजीपुर को, यहाँ का भी विकास हो, इसलिए इतने बार आए। अब फिर आ रहे हैं गाजीपुर के। मैं तो उनका प्रत्याशी हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सेनापति अपने सेना के विजय के लिए तो दौड़ेगा, पूरा देश पर दौड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चुनावी सभा में आगे भी जाना है और वक्त नहीं लूंगी आपका, बट हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। दैट इज पार्थ राय, द बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम गाजीपुर, really telling us about why he thinks this time around BJP will score in Gazipur, something that they failed to do in 2019.
So you've heard the two candidates, you've heard the Janta here. We're slipping into a very quick break, but when we come back, we'll take you to other parts of Ghazipur and let you know what in the interiors of this Lok Sabha constituency the voter is thinking and saying. Stay with us. Welcome back. We're joining you live from Ghazipur, Mau, Balia, this entire area. The BJP has often alleged that the Ansari Parivar's reign of terror is ruling in these parts. So I decided to visit markets of Ghazipur and figure out whether rangdari, kidnapping, murder or normal crimes are part of day-to-day lives of residents here. Listen in to what they had to say. Ghazipur is going to vote in the last phase of election. This sweet shop might be one of the destination for which the winner might order all the sweets from. All the laddus could actually go from Satnam Sweets. Satnam Sweets के मालिक हमारे साथ यहाँ पे है. क्या लग रहा है यहाँ पे गाजीपुर में कैसा माहौल है चुनाव का? समाजवादी पार्टी के जीतेंगे अफजल अंसारी जी. अफजल अंसारी लग रहा है. अच्छा, अफजल अंसारी के जो भाई है मुख्तार अंसारी, उनके बारे में तो कहा, मतलब भाजपा ये प्रचार करती है कि माफिया थे, डरा धमका के रखते थे. तो ऐसे परिवार के साथ लोग क्यों जुड़ते हैं? मुख्तार अंसारी गुंडा नहीं थे, गरीबों के मसीहा थे. गरीबों के मसीहा थे. अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय यादव है. अजय, ये कब से है यहाँ पे? कब से दुकान चला रहे हैं? मेरे बाप दादा की दुकान है. तो कभी लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत? कभी कोई रंगदारी, कोई धमकाना, कोई लूटपाट? कोई धमकाना कुछ नहीं है. अच्छा, लेकिन आप मनोज सिन्हा के बारे में भी बहुत बड़े फैन हैं. मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष थे, अच्छे काम किए थे सिन्हा जी ने. अब जनता ने उनको हरा दी. क्यों हरा दी? बहुत अच्छे काम किए थे मनोज. कुछ ग्राहक भी बैठे हुए. आप यहीं के रहने वाले? यस, यहीं के रहने वाले. क्या काम करते हैं? हमारा तो हाउसकीपिंग का काम है. हाउसकीपिंग का काम है. यहाँ कैसा माहौल चल रहा है गाजीपुर में? समाजवादी वर्सेस भाजपा टक्कर. यहाँ पे बीजेपी और सपा दोनों फाइट में है और ये नहीं कहा जा सकता है क्लियर कि बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी. इस बार का चुनाव मतलब हमारे हिसाब से बहुत तगड़ा चुनाव होगा. पिछली बार तो विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी हार गए, लेकिन इस बार स्पष्टली नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा. आप सब लोग उनको विकास पुरुष कह रहे, फिर उनको गाजीपुर ने पिछली बार हरा क्यों दिया? नहीं, हराया का मतलब उस बार जो सीटें लड़ी सपा बसपा जितनी और सीटें थी, जितने लोग थे, सब लोग साथ में लड़े, बीजेपी अलग लड़ी. लेकिन उसके मुकाबले में जितना पिछले बार लोकसभा में सिन्हा जी ने वोट पाया था उससे 1.5 लाख वोट अधिक पाए थे वो. उसके बाद भी हार गए. तो ये दुर्भाग्य हमारे गाजीपुर का. आपका दुर्भाग्य आपको लगता है? इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी गाजीपुर के ही रहने वाले ना? आप गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए बात नहीं कर सकते. आप तो युवा है, आप बात कर सकते हैं. इस बार बैठे रहिए. इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से, मनोज सिन्हा के बहुत खास माने जाते हैं. दूसरी तरफ अफजल अंसारी है जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं. मुख्तार अंसारी, जैसे मैंने कहा, बहुत आरोप लगते हैं उन पे. तो आप एज ए युवा कैसे देखते हैं उस चुनाव को? नहीं, ऐसी बात नहीं है. वो गरीबों के मसीहा हैं. जब वो विकास पुरुष को 1.5 लाख वोट से हरा सकते हैं तो इनको हराना आसान बात है. इसमें आराम से निकाल देंगे. वो इस बार 2-3 लाख से वोट से जीत जाएंगे. आपको लगता है 2-3 लाख वोट से जीत जाएंगे? हाँ, बट मोदी आएंगे वो भी हार जाएंगे, क्योंकि वो इतना गरीबों के इतना मसीहा हैं. मुख्तार अंसारी, चाहे अफजल, उनका परिवार जितना है, पूरा गाजीपुर में इतना उनका दबदबा है, कोई भी आएगा यहाँ हार जाएगा. आप अग्री करते हैं मोदी भी आएंगे तो भी हार जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं? जी सही बता रहे हैं सर. सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं भैया. हाँ. कोई भी यहाँ से आ जाए मैडम, मुख्तार अंसारी को या अफजल अंसारी को नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बुजुर्गों के भी दिल में बसते हैं, बच्चों के भी दिल में बसते हैं, यूथ के भी दिल में बसते हैं. और वो इंसान चाहे जो भी राजनीति की वेशभूषा है, वो किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हैं, लेकिन इतना जानते हैं जरूर कि वो यूथ के दिल में बसते हैं, बुजुर्गों के भी दिल में बसते हैं और बच्चों के भी दिल में बसते हैं. उनके ऊपर इतने आरोप है, गैंगस्टर एक्ट के आरोप है, कहा जाता है कल्पना राय मर्डर केस में भी उनका हाथ है. अब देखिए मैडम, अच्छे काम करने वालों के ऊपर भी और बुरे काम करने वालों के ऊपर भी अच्छे भी आरोप लगते हैं, बुरे भी आरोप लगते हैं. हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे ऊपर मतलब बुरे भी लोग होंगे, अच्छे भी लोग होंगे. तो भाई किसी के लिए हम अच्छे भी करेंगे तो भी हमारे लिए आरोप लगेंगे, बुरे करेंगे तो भी आरोप लगेंगे. आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सर हिला रहे हैं पीछे से, देखिए हम आपके पास आते हैं. क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, सो द ग्रुप आई हैव मेट हियर, दे फील दैट मनोज सिन्हा इज अ विकास पुरुष, that he has done a lot of development for Ghazipur, but at the same time
they feel that it will be difficult to defeat the Ansari Parivar, that Afzal Ansari has done a lot. So it looks like that there will be a clash, a big time clash in Ghazipur this time around. गाजीपुर की जो लड़ाई है बीजेपी और सपा के बीच में इस बार आपको लगता है क्या रहने वाला है? उसमें टाइट फाइट है कि किसको एज लग रहा है आपको? फाइट तो है, लड़ाई तो ही है, लेकिन काम के आधार पर अगर देखा जाए गाजीपुर को तो मैं मानता हूं कि माननीय मनोज सिन्हा जी ने काफ़ी अच्छा काम किए हैं, तो उस आधार पर, काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की बड़ी इमेज बन गई कि बाहुबलियों का जिला बन गया एक तरह से। ये है ऑलरेडी यही है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभा में जो विपक्ष के लोग हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है, कहाँ विकास कर रहा है, और हम किस परिस्थितियों में अटके हुए हैं। यहाँ जाति पाति के नाम पर अटक करके और हम अपने को गंवा रहे हैं, खपा रहे हैं, यहाँ पे सर माथा पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? हम समाज के साथ, हमारी सरकार के साथ हम रहते क्यों नहीं? पूरे प्रदेश में हमारी सरकार है, बाकी गाजीपुर जिले की क्या दशा है आप देख लें। So Aman and I got you the pulse of the voters here in Ghazipur. The buzzword seems to be Vikas, Masiha, ya Mafia. But then there is an X factor. That X factor is Jati or caste. There are about 4 lakh Yadav voters in the Ghazipur constituencies, 3.5 lakh Dalit and about 2 lakh Muslim voters. This is the core vote bank on which the India Alliance is depending. They're hoping that BSP's vote bank would also shift to their alliance. Will that happen, or will there be cross-consolidation of other Brahmins, Rajputs and other communities here? Definitely this election is an all-out fight between the India Alliance, Samajwadi Party candidate Afzal Ansari and the Bharatiya Janata Party. Will the Prime Minister's rally here tomorrow change anything? Wait and watch. Thanks for watching.